Jai Bharat, dear all Advitians. So in our last lecture, we discussed about the cell wall, in which we seen different kind of cell wall, that is primary cell wall, secondary cell wall and tertiary cell wall. In this lecture, now we are proceeding for the next part of the cell wall. Cell wall जो है उसके बाकी के जो पार्ट बाकी है या फिर a structure which is related to the cell wall, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? उसमें जो फर्स्ट पार्ट है that is middle lamella. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मिडल लेमेला इज फॉर्म्ड एट द टाइम of cytokinesis process of cell division. So this red line shows middle lamella, right? That red line shows what? Middle lamella. अगर हम middle lamella की बात करें, then middle lamella is made up of magnesium and calcium pactate, right? So this is nothing but the middle lamella, and this middle lamella is made up of calcium and magnesium pactate. It is made up of calcium and magnesium pactate, and this calcium and magnesium pactate is secreted by what? It is secreted by the phragmoplast, which is a fragments of ER, means endoplasmic reticulum, and Golgi body, right? So that endoplasmic reticulum and Golgi body develop different kinds of fragments, that is known as phragmoplast, and that phragmoplast located in the equator of the cytokinesis, and that form what? That form a cell plate, right? So this is the middle lamella, and on either side of the middle lamella there is a thick layer. This thick layer is nothing but the primary cell wall. It is nothing but the primary cell wall. As we know that the primary cell wall is predominantly made up of what? Hemicellulose. It is made up of hemicellulose, right? It doesn't mean that this cell wall do not contain a cellulose. Cellulose is there, but predominantly means what? Maximum amount में क्या है इसमें? Hemicellulose, right? And as we know that the hemicellulose is what? It is a heteropolysaccharide which contain different kind of monomer unit. That includes what? Galactose, then arabinose, then mannose, then xylose. This kind of monomer unit together form hemicellulose, and hemicellulose form what? Primary cell wall. As we know that the primary cell wall is a part of cell wall which is considered as a living part, because it is related with the enzymatic activity, and this part also contains small amount of protein, right? Okay, तो ये हम बात कर रहे हैं, that is about middle lamella. The first reported this structure, right, and the information was given by Strasburger in 1901, right? Okay, it is the binding layer between the cell wall of two adjacent cell, right? So here we have a cytoplasma of one cell, and here the another cytoplasma. So there are two adjacent cell. So this middle lamella act as a glue, right, between the two cell. And देखिए कोई भी cell में outermost layer जो हो क्या होगा? It is always a primary cell wall. Then there is a secondary. Then there is a tertiary. So tertiary cell wall, if it is there, then it will remain in contact with the plasma membrane, means towards the inner side, right? So outermost wall is always a primary cell wall. Okay. So it is formed of pactates. Pactates of what? Pactates of calcium and magnesium, right? As we know that the pactic acid, अगर हम उसकी बात करें या फिर pectin की बात करें, तो pectin जो है it is made up of glucuronic acid and galacturonic acid. So pectin is basically, it is a heteromolecule, right, which is made up of glucuronic and galacturonic acid, right? Okay. It is absent on outer free surface. अब outer free surface का मतलब क्या होगा? Supposing that here there is a part of a plant, और ये जो है ये इसका क्या है? Outer surface. ये उसका क्या है? Outer surface. और यहाँ पे suppose हम दो adjacent cell जो है वो form कर रहे हैं. ये suppose दो adjacent cell मैंने यहाँ पे बनाया है, right? Okay. अब दो adjacent cell जो हैं उसके बीच में क्या होगा? That contain a middle lamella. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो outermost cell होगा, राइट, कि जिसकी एक सरफेस हम कंसिडर करेंगे क्या? एपिडर्मिस लेयर, राइट? तो वहां पे वो आउटर मोस्ट सरफेस है, इसलिए वहां पे क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे मिडल लेमेला जो है वो नहीं होगा, बिकॉज मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सक्सेसिव सेल, टू एडजेसेंट सेल, उन दोनों के बीच में मिडल लेमेला होगा. लेकिन अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस ऑफ रूट,
then epidermis of stem, epidermis of leaves, that is the outermost layer. तो outermost layer के बाहर तो कुछ है ही नहीं, right? तो वहां पे उस सरफेस पे, सिर्फ उस सेल की उस सरफेस पे क्या नहीं होगा, मिडल लैमेला जो है वो नहीं होगा, वो याद रखना. ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइंट सिक्रीशन ऑफ बोथ द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो दो सेल जो उसके सेल डिवीजन, एक सेल का जब सेल डिवीजन होता है एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, द साइटोप्लाज्मा ऑफ टू सेल सिक्रेट व्हाट, फ्रैग्मोप्लास्ट, और उससे ही क्या बनेगा, मिडल लैमेला जो है वो फॉर्म होगा. ओके, राइपनिंग फ्रूट और राइप फ्रूट्स बिकम सॉफ्ट ड्यू टू पार्शियल डिसोल्यूशन ऑफ अ पैक्टिक सब्सटेंस ऑफ मिडल लैमेला. अब हमने यहाँ पे देखा कि मिडल लैमेला जो है दैट एक्ट एज अ ग्लू बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल. अब ये जो मिडल लैमेला है, सपोज अगर हम बात करें दिस मिडल लैमेला, दैट मिडल लैमेला इज डाइजेस्ट और डिसॉल्व by one of the phytohormone, and that phytohormone is known as ethylene, right? There are 5 different kinds of phytohormone. Phytohormones means what? Plant hormone, right? That include auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethylene, right? Out of this 5, this ethylene is related with the, we can say that it is related with the process of aging. और ये ethylene जो है that dissolve what? That dissolve पैक्टिक मटेरियल प्रेजेंट इन द मिडल लैमेला. अगर मिडल लैमेला में से वो ग्लू निकल गया, उसका मतलब ये है कि सेल जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, सेल जो है वो एडजस्ट करेंगे, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब फ्रूट जो है वो एकदम फ्रेश, तब वो आपको कैसा लगेगा, थोड़ा हार्ड सरफेस लगेगा. लेकिन जैसे ही उसमें राइपनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, मिडल लैमेला जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा, वैसे वैसे वो फ्रूट जो है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, राइट. एंड दैट इज ड्यू टू अ फाइटोहार्मोन इथिलीन. किससे होता है वो, इथिलीन, ठीक है. चलिए, अब बायोटेक का एक पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है. 2 टाइप के टोमेटो आते हैं. एक जो है वो जो नॉर्मल टोमेटो जो है वो हम ये बोल सकते हैं स्फेरिकल होते हैं, और अभी जो आप मार्केट में से ले रहे हो वो हाइब्रिड टोमेटो है यार, राइट. दैट इज नोन एज फ्लेवर सेवर टोमेटो. तो वो टोमेटो जो है वो थोड़ा ऑब्लॉन्ग होगा और उसकी सरफेस जो एकदम शाइनी होगी. एंड इफ यू कीप दैट टोमेटो फॉर अ वीक, तो भी वो क्या नहीं होंगे, राइपनिंग नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ये इथिलीन का जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चेक किया गया है. उसका मतलब ये है कि इथिलीन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, वो सिंथेसाइज ही नहीं होगा. अगर वो सिंथेसाइज नहीं हुआ then that fruit can remain as it is for a longer period of time, ठीक है. चलिए, लेकिन वो हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में. चलिए, तो यहाँ पे मिडल लैमेला जो है वो मिडल लैमेला जो है वो हमने कंप्लीट किया. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. दूसरा जो है दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है. देखिए यहाँ पे भी जो रेड लाइन है दैट इज मिडल लैमेला, एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल लैमेला देयर इज अ प्राइमरी सेल वॉल. वो मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ. और उसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट है इट इज नथिंग बट द सेकेंडरी सेल वॉल. वो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल. और सेकेंडरी सेल वॉल में हम 3 लेयर भी पढ़ चुके हैं. कौन कौन से, S1, S2, S3. S1 remain in contact with the primary cell wall and S3 remain in contact with the plasma membrane or with the tertiary cell wall. That is depending upon the cell type, right? Okay, तो ये हो गया secondary cell wall. There is a part, right? There is a part of a cell wall of a plant cell which do not contain deposition of cellulose. तो ये secondary cell wall जो है वो किससे बना है, it is made up of cellulose. किससे बना है वो, predominantly it is made up of cellulose. जब हम बात कर रहे थे किसकी, प्राइमरी सेल वॉल की, तो प्राइमरी सेल वॉल में इट इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, ठीक है. सेकेंडरी सेल वॉल जो है इट इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो ये जो ग्रीन पार्ट है देयर इज सेल्यूलर डिपोजिशन. लेकिन प्लांट सेल में ऐसे पार्ट है दैट डू नॉट कंटेन डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, दैट पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ पिट. उसको हम क्या बोलेंगे, पिट, राइट. और 2 एडजेसेंट सेल के जो पीट है दैट विल रिमेन ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है. चलिए, तो ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हुआ, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक रीजन, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ एडजेसेंट सेल, राइट. और यहाँ पे दोनों सेल के देखिए SER. SER का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डू नॉट हैव रिबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, राइट. दैट इज कंसिडर्ड एज SER. सो दैट SER हैज सिस्टर्नी, राइट, एंड दैट सिस्टर्नी पेनिट्रेट इनटू दैट पिट पार्ट. पिट पार्ट मीन्स व्हाट, a part of cell wall which is without cellulose, ठीक है. तो वो pit part में क्या हो जाएगा, penetrate हो जाएगा. So from the both cell they develop what, cisternae inside this pit,
and through that it form a channel, and that through that channel we can say that the exchange of material between the two adjacent cell would be possible. और ये जो चैनल फॉर्म हुआ इट इज नथिंग बट द प्लाज्मोडेस्माटा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। चलिए, these are cytoplasmic strand which act as a intercellular junction, ठीक है। They are found in area where the secondary cell wall is absent, secondary cell wall नहीं है वहां पे, और वो पार्ट कौन सा है, it is a part of pit, right? They are formed of desmotubules. Desmotubules means what? Tubules of SER which are present in a plasmodesmata part. तो जो पिट वाला पार्ट है उसमें जो सिस्टर्नी है which is a tubule of endoplasmic reticulum, which one? SER. That tubule is also considered as a desmotubule. Tubule of SER which is present in a plasmodesmata, so it is considered as a desmotubules, ठीक है। Okay, the help in exchange of material वो भी हमने देख लिया। Okay, now the next part is केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो हमने अभी देखा कि प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कंपोनेंट नहीं है, बट मैक्सिमम क्या है, हेमीसेल्यूलोज। सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, उसका मतलब ये नहीं है कि हेमीसेल्यूलोज नहीं है, ठीक है, वो भी है। चलिए, लेकिन अगर हम बात करें अब मैच्योर सेल की या फिर डिफरेंशिएटेड सेल की, ठीक है, या फिर अ पार्ट ऑफ सेल विच इज अ पार्ट ऑफ टिश्यू, अगर हम उसकी बात करें तो वो सब में जो सेल वॉल होगा इट इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। चलिए, तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें सेल वॉल की, देन सेल वॉल हैज 10 to 15% सेल्यूलोज फाइब्रिल्स। सेल्यूलोज जो है उसके फाइब्रिल्स हैं उसमें। अब सेल्यूलोज जो है वो कैसे फॉर्म होगा, 6000 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट, देन दे फॉर्म वन फाइबर ऑफ सेल्यूलोज। ऐसे बहुत सारे सेल्यूलोज के फाइबर मिलके क्या बनाएंगे, मिसल्स। मिसल्स मिलके क्या बनाएंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स। माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके क्या बनाएंगे, मैक्रोफाइब्रिल, एंड टुगेदर दैट मैक्रोफाइब्रिल डिपोजिटेड ऑन द मैट्रिक्स विच इज फॉर्म बाय ग्लाइकोप्रोटीन एंड हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। वैसे सेल वॉल जो है फॉर्म होगा, बट सेल वॉल में ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि 10 to 15% इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। और सेल्यूलोज है क्या, सेल्यूलोज इज होमोपोलीसेकेराइड, वो भी याद रखना। सेल्यूलोज इज होमोपोलीसेकेराइड विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मोनोमर शुगर, और वो कौन सा है, ग्लूकोज। वाइल हेमीसेल्यूलोज इज व्हाट, हेमीसेल्यूलोज इज हेटेरोपोलीसेकेराइड, राइट, विच इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर। कौन कौन से, गैलेक्टोज, आर्बिनोज, मैनोज, जाइलोज, ठीक है। चलिए, इसके अलावा H2O की अगर हम बात करें तो 60% जो है वो क्या है, H2O इन सेल वॉल। पैक्टिक मटेरियल जो है दैट इज 2 to 8% विच इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोरोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन जो है वो 1 to 2%, बट दिस प्रोटीन पार्ट ऑफ सेल वॉल इज ओनली अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल में प्रोटीन नहीं होता। लिपिड 0.5 to 3%। तो जब हम ये बोलते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन है, लाइक लिग्निन, लाइक क्यूटीन, दिस लिग्निन एंड क्यूटीन आर फैटी मटेरियल, राइट, ओके। सेल वॉल मे कंटेन लिग्निन, शुबिरिन, क्यूटीन, xylin, सिलिकेट्स इन लीव्स ऑफ ग्रास एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेड। ये सब भी सेल वॉल जो है उसके आसपास के डिपोजिशन जो है वो है, राइट, ओके। तो वो हुआ हमने सेल वॉल जो है उसके कंपोजिशन देखे। अब सेल वॉल का जो मेन कंपोजिशन जो है वो क्या है, सेल्यूलोज। और हमने अभी देखा कि सेल्यूलोज जो है वो क्या है, इट इज़ अ होमोपोलीसेकेराइड। कैसा पोलीसेकेराइड है, इट इज़ अ होमोपोलीसेकेराइड। और उसका जो मोनोमर जो है वो मोनोमर कौन सा है, ग्लूकोज। लेकिन कौन सा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। इट इज़ नथिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन वो हम डिटेल में देखेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। अब ये देखिए कि सेल्यूलोज जो है वो होमोपोलीसेकेराइड है, और ऐसा ही एक दूसरा होमोपोलीसेकेराइड है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फॉर्म व्हाट, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, राइट, ओके। तो प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
Plant translocate that carbohydrate in form of sucrose because sucrose is non-reducing sugar. Plant can store the sugar in form of starch. तो plant synthesize क्या कर रहा है? ग्लूकोज. ट्रांसलोकेट कौन से फॉर्म में कर रहा है? सुक्रोज. और स्टोर कौन से फॉर्म में कर रहा है? स्टार्च. लेकिन उसका कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो है वो प्लांट का, वो किससे बना है? वो है सेल्यूलोज से बना. क्योंकि सेल वॉल जो है वो एंटायर स्ट्रक्चर किससे बना है? सेल्यूलोज से. ठीक है. तो स्टार्च जो है, स्टार्च ऑल्सो अ होमोपोलीसेकेराइड. स्टार्च जो है वो भी कैसी है? होमोपोलीसेकेराइड है. तो स्टार्च और सेल्यूलोज अगर दोनों में मोनोमर जो है वो ग्लूकोज ही है, दोनों के मोनोमर भी सेम है. ठीक है. दोनों के मोनोमर जो क्या है? ग्लूकोज है. ठीक है. तो फिर दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है? अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोज की. ठीक है. तो सेल्यूलोज में सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है. ये इसका रिंग स्ट्रक्चर हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6. राइट. दिस इज द लोकेशन ऑफ कार्बन एटम. ओके. सेम वे यहाँ पे भी मैं क्या बना रहा हूँ? दिस इज द अनदर हेक्सोज शुगर. और वो हेक्सोज शुगर कौन सा है? ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो आल्डो हेक्सोज शुगर है. हाँ या ना? ठीक है. ये आप पढ़ चुके हो. ग्लूकोज इज आल्डो हेक्सो शुगर. 3 हेक्सो शुगर मेनली आप पढ़ेंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. आउट ऑफ दैट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर आल्डो हेक्सोज एंड फ्रुक्टोज आर कीटो हेक्सोज. ठीक है. लेकिन अभी हम बात करें ग्लूकोज की. ठीक है. चलिए. तो सेल्यूलोज जो है वो, सेल्यूलोज में ये जो फर्स्ट कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नेक्स्ट जो ग्लूकोज जो है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके ओरिएंटेशन में चेंज है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओरिएंटेशन यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसमें से एक H2O जो है वो रिलीज होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली इट फॉर्म दिस काइंड ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये जो फॉर्म हुआ वो कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एक चीज याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड की हम अगर बात करें तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और अगर लिपिड की अगर हम बात करें तो एस्टर बॉन्ड. ठीक है. चलिए. तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है दैट इज बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ वन शुगर एंड द फोर्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट वन. इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1,4. लेकिन ये टाइप कौन सा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्या बोलेंगे हम इसको? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये मैंने जो भी बात करी दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू सेल्यूलोज. हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्यूलोज की. ठीक है. अब सेम वे अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है उसमें भी वो भी क्या है? होमोपोलीसेकेराइड विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज. ये फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सेम वे यहाँ पे सक्सेसिव दूसरा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फोर्थ वन. अब यहाँ पे जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन शुगर एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट वन, उसमें अगर आप देखिए तो दोनों के साथ पैरेलल. और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? H2O जो है दैट विल रिलीज. अगर H2O रिलीज होगा तो जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो बॉन्ड जो कौन सा फॉर्म हो रहा है? ग्लाइकोसिडिक. लेकिन देखिए इसमें ओरिएंटेशन जो है वो कैसा है? डिफरेंट है OH ग्रुप का. यहाँ पे कैसा है? डिफरेंट. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो तो ग्लाइकोसिडिक ही है. बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? ग्लाइकोसिडिक. लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो स्टार्च और सेल्यूलोज वो दोनों होमोपोलीसेकेराइड है, लेकिन स्टार्च में होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और सेल्यूलोज में होगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. चलिए. तो हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोज की. तो सेल्यूलोज इज अ पॉलीसेकेराइड. मैंने पहले भी बताया पॉलीसेकेराइड ये कैसा है? होमोपोलीसेकेराइड. Cellulose is a homopolysaccharide made up of 6,000 D-glucose molecules linked by beta 1,4 glycosidic bond. So there are 6,000 D-glucose molecules when joined together by the beta 1,4 glycosidic bond and form a long fiber. That long fiber is nothing but the cellulose molecule, right? Such 100 cellulose molecule chain when they are joined together they form what? Micelles. And such 20 kind of micelles when they are formed together, joined together, they form what? Microfibril. और ऐसे 250 microfibril जो हैं वो जब एक दूसरे के साथ प्लेक्सस डेवलप करेंगे then they form macrofibril. Micro means small, macro means large. और उससे वो क्या बनाएंगे? 1 माइक्रोमीटर का एक डायमीटर वाला एक फाइबर बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोफाइबर. एंड देन आफ्टर दैट मैक्रोफाइबर ग्रेजुअली डिपोजिटेड on what? Deposited on a matrix which is form of glycoprotein and hemicellulose. ठीक है.
चलिए, so cell wall has framework of macrofibril which is embedded in the matrix, and that matrix is formed by what? Water, हेमीसेल्यूलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन। वो किससे बना है? वाटर से बना है, हेमीसेल्यूलोज से बना है, और दूसरा किससे बना है? ग्लाइकोप्रोटीन से वो बना है। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि सेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलोज जो है उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है। 6000 डी ग्लूकोज से क्या बनेगा? एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। ऐसे 100 ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल से क्या बनाएगा? मिसल्स। ऐसे 20 मिसल्स से क्या बनेंगे? माइक्रोफाइब्रिल्स। ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल्स से क्या बनेगा? एक मैक्रोफाइब्रिल। और फिर वो डिपॉजिट होगा किसके ऊपर? ग्लाइकोप्रोटीन के मैट्रिक्स या फिर हेमीसेल्यूलोज और वाटर का जो तीनों का मिलकर जो मैट्रिक्स बना है उसके ऊपर वो डिपॉजिट होंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सेल वॉल इन फंजाई, राइट? सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, and that chitin is also what? Homopolysaccharide, और उसका जो मोनोमर यूनिट है that is N-acetyl glucose amine। क्या है? N-acetyl glucose amine। तो अब देखिए आपके पास तीन ऐसे मॉलिक्यूल हमने देखे, शुगर मॉलिक्यूल ये तीनों, कि जो क्या है वो तीनों मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? होमोपोलीसेकेराइड। एक हमने देखा सेल्यूलोज, दूसरा हमने देखा स्टार्च, और तीसरा आपके पास आ गया काइटिन। ठीक है, ओके। सही में दो हमने हीट्रो मॉलिक्यूल भी देखे। एक हमने कौन सा देखा? हेमीसेल्यूलोज। किससे बना है? गैलेक्टोज, आर्बिनोज, मैनोज, जाइलोज, तो वो हीट्रो हो गया। सही में दूसरा हमने देखा पैक्टीन, वो किससे बना है? ग्लूकोरोनिक एसिड एंड गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, तो वो भी हीट्रो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, चलिए। काइटिनस सेल वॉल इज फाउंड इन ऑल फंजाई। सब फंजाई जो है उसमें सेल वॉल किससे बना है? काइटिन से बना है, एक्सेप्ट इन वन क्लास, एंड दैट क्लास इज अ फाइकोमाइसेटिस। सी, there are different 6 class in a fungi, right? But that we will discuss in a chapter of classification। उसमें सबसे ज़्यादा primitive जो है, और it is also known as ancient class is Phycomycetes। This Phycomycetes has a primitive kind of cell wall, right? And that primitive kind of cell wall जो है वो किससे बना है? It is made up of glucan and protein, right? It is made up of two things. One is glucan. See, this glucan stands for carbohydrate and protein, right? It is made up of glucan and protein. So basically that kind of cell wall is also found in a prokaryotic cell, कि जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से सेल वॉल बना है। तो जो प्रिमिटिव, देखिए मैं यहाँ पे एक इवोल्यूशन का टॉपिक ले रहा हूँ कि ग्रेजुअली जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन इज ऑलवेज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल जो है उससे टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो बना। ठीक है, तो अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें दैट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटिस्टा, तो उसमें सेल वॉल जो है वो क्या हुआ? इवॉल्व हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें फंजाई, तो फंजाई में किससे बना है? ग्लूकैन और प्रोटीन से। बाकी के सारे फंजाई जो है, मोस्ट ऑफ ऑल फंजाई हैज काइटिन। लेकिन जो हम ये बोल सकते हैं कि जो अपर मोस्ट फंजाई का जो क्लास होगा दैट विल कनेक्ट द किंगडम फंजाई विद द प्लांट, उसमें सेल वॉल कैसा होगा? उसमें सेल वॉल फंजाई और प्लांट दोनों जैसा होगा। ठीक है, ओके। तो लोवेस्ट फंजाई का सेल वॉल कैसा होगा? फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल जैसा। हाईएस्ट फंजाई जो है उसका कैसा होगा? प्लांट एंड फंजाई जैसा। चलिए, तो ये फाइकोमाइसेटिस जो है दैट इज प्रिमिटिव क्लास ऑफ द फंजाई विच हैज अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकैन एंड प्रोटीन। ओके, नाउ दूसरा एक एग्जांपल फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा जो है दैट इज अ एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ फंजाई विच इज नोन एज oomacetes। कौन सा क्लास है? oomacetes ऑफ फंजाई, राइट? वेयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? देखिए क्या लिखा है? सेल्यूलोज। तो जो oomacetes क्लास जो है दैट इज मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास इन फंजाई। तो उसका सेल वॉल कैसा हो जाएगा? उसका सेल वॉल जो है वो कैसा होगा? प्लांट जैसा, राइट? तो उसमें कैसा है? देखिए कंपोनेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट इज सेल्यूलोज। ओके, नाउ सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल, वो भी हम पढ़ चुके हैं। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड दिस पेप्टिडोग्लाइकन अगर हम उसकी बात करें, पेप्टिडोग्लाइकन में पेप्टिडो स्टैंड फॉर प्रोटीनियस एंड ग्लाइकन स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट जो हम बोल रहे हैं इट इज़ नॉन सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज नहीं है, राइट? ओके, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड बट इट इज़ नॉट अ सेल्यूलोज। और उसके साथ क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन, और इसलिए देखिए क्या बोला हमने? पेप्टिडोग्लाइकन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, in case of prokaryotic cell wall, this peptidoglycan is also known as
murine, M-U-R-E-I-N, right? Murine is also known as a peptidoglycan. चलिए, cell wall is absent in mycoplasma. Mycoplasma means what? PPLO, pleuropneumonia-like organ, right? Supposing that if somebody asks you in a question paper that which one is the smallest organism, at that time your answer should be bacteria. But which one is the smallest organism without cell wall? Then your answer should be PPLO. PPLO is without a cell wall, right? And it is a prokaryotic cell, which is also known as mycoplasma. What is smaller than PPLO? Your answer should be virus. What is smaller than virus? Viroids. What is smaller than viroids? Prions, right? Which is a small particles of the protein which act as an antigen. Okay, चलिए, तो ये हो गया cell wall in prokaryotic cell. Now the next part is origin of cell wall. Cell wall कैसे फॉर्म हुआ? अभी हमने देखा कि at the time of cytokinesis two different cytokinesis होगा कैसे? After karyokinesis. So karyokinesis means what? Nuclear division. So once the nuclear division is completed, once the cell is passed from prophase, metaphase, anaphase, telophase, then after that proceed for the what? Cytokinesis. So at the time of cytokinesis, there is a formation of plate at the equator region of the cell, right? There is a formation of plate at the equator region of the cell, and that plate is formed by small particles of Golgi body and ER, right? And that small particles is nothing but that small fragment is nothing but the phragmoplast. What it is called? Phragmoplast. So from two sides or from two different cells, gradually cytoplasma delivered what? It delivered phragmoplast, means fragment of ER and Golgi complex, and then after they are accumulated at the cell plate, right? Cell plate is the equator part of the cell. Okay, gradually that phragmoplast secrete some substance which is basically a pactate substance of calcium and magnesium. So that from what? Middle lamella, and then after from both the side of the this middle lamella, the cytoplasma secrete gradually what? Hemicellulose, right? And that form what? Primary cell wall. और उसके बाद क्या बनेगा? Secondary cell wall, right? वो हम पढ़ चुके हैं. चलिए, तो new wall or new cell wall is formed during cytokinesis, during the cell division, and by cell plate formation. This is nothing but the cell plate, and this cell plate is formed by fragments of Golgi body and ER. So phragmoplast, which has 20 micrometer, right, in size, that piece is derived from the ER and Golgi body and line up on the equator and fuse to form a cell plate. वो क्या बनाएंगे? Cell plate जो है वो form करेंगे on the equator. Okay, cell plate grows on all the sides and secrete middle lamella. That middle lamella is made up of what? Calcium and magnesium pactate. Okay, middle lamella gets deposited with cellulose on both the side by cytoplasma and form what? Cell wall. वो होगा primary cell wall, और उसके बाद क्या होगा? Secondary cell wall. Okay, now the last part of this lecture is a function of cell wall. तो ज़्यादातर जो सेल वॉल के जो फंक्शन है वो आप सेकेंडरी में पढ़ चुके हो, लेकिन दो तीन ऐसे जो हैं वो हम डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट जो है दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, राइट? तो वो हम पढ़ चुके हैं पहले. ओके, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, राइट? और सेल वॉल जो है वो, अगर हम प्लांट की बात करें तो सेल वॉल जो है वो एक रिजिड पार्ट होने की वजह से इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, प्लांट की हाइट जो है उसकी वजह से है. इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल. सेल वॉल ऑफ रूट हेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एपोप्लास्ट पाथवे. देखिए यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है दैट इज थ्रू द टू पाथवे. वन इज एपोप्लास्ट एंड द अदर वन इज सिम्प्लास्ट. अब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो है उसमें फ़र्क क्या है? सपोजिंग दैट दिस सेल इज अ एपिडर्मल सेल, और यहाँ से ये पूरा रूट एपिडर्मिस है, ऐसा समझो, राइट? दिस इज नथिंग बट द एपिडर्मिस ऑफ रूट. दिस इज द एपिडर्मिस. ठीक है, आफ्टर दिस एपिडर्मिस देयर इज अ कॉर्टेक्स एंड द इनरमोस्ट layer of this epidermis, this is the innermost layer of epidermis, which is known as endodermis. What it is called?
endodermis, and inside this endodermis there is a vascular tissue. Particularly here we are talking about the xylem, because we are talking about the we can say that the translocation of what? Water, right? Okay, so cell wall of root hair helps in absorption of water by apoplast pathway. So basically there are two pathways. See, this is the soil particles, and in between this soil particles, supposing that here there is a water reservoir in which there is a mineral ions, right? Okay, so basically this mineral ions and water is passed through cell wall, right, through the region of cortex cell and reach to the endodermis, and this process is very much fast, right? In this process, water do not cross any kind of membrane structure, so that basically transduction is through cell wall to cell wall, and that path is known as apoplast pathway, right? Okay, and this is the fast path. Okay, in other case, this H2O and mineral ions enter into the cytoplasmic region of the cell. It crosses the many membrane like a membrane of vacuole, which is a tonoplast, and then after it will enter into the endodermis and vascular tissue. And this, in this kind of transduction, we can say that the water molecule has to pass the many membrane, and that is why it is known as symplast pathway, right, which takes much time as compared to the apoplast. So basically apoplast is a movement of water molecule from cell wall to cell wall, while symplast in which the water molecule enter into the cell, and if it enter into the cell, that means the water molecule has to cross the many membrane, right? Okay, it is also known as transmembrane transportation. Okay, cell wall prevents undue expansion of cell, right? As we know that in the endosmosis, supposing that if we take animal cell, so because of endosmosis, water molecule comes into the cytoplasm, that animal cell turgid, and ultimately if that endosmosis remains for a prolonged time, that cell will go to a rupturing process, right? While in case of plant cell, due to the endosmosis, water enter into the cytoplasmic region, cell is turgid, that creates a pressure, but it do not undergoes a rupture, right? And why does it so? Because there is a pressure which against this turgor pressure, and that is known as a wall pressure. तो cell wall जो एक pressure generate कर रहा है, right, which against the turgor pressure, और इसलिए वो burst नहीं होगा, और इसलिए वो expand भी नहीं हो सकता. So undue expansion of cell जो है वो हम cell wall की वजह से जो है वो prevent हो जाएगा, right? So here we are done with the cell wall topic. I hope you enjoy this lecture. If yes, please share this information with your friend. अगर आपको मुझसे बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है तो हमारी टीम में और भी बहुत अच्छी फैकल्टी है. फॉर एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री वी हैव डॉक्टर विनयदीप पुनेठा एज वेल एज रॉय सर, एंड फिजिक्स में जो है दैट इज अंकित वर्मा सर एंड प्रीतम सर. मैथ्स में भी बहुत ही ढांसू फैकल्टी है, देवीदास कमलेकर सर, निशांत राजगुरु सर फॉर JEE एंड नीट. सो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो क्रैक करने के लिए पूरा जबरदस्त पैकेज है फैकल्टी का, राइट? सो इफ यू लाइक अवर टीचिंग मैथडोलॉजी, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अद्वैत अचीवर्स. यू कैन गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द ऐप. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. स्टे ट्यून. विद्यार्थी देवो भव. जय भारत.